Yes, hello, good morning everyone. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Okay, let's start today's English class and we would learn the simple present and present continuous tense. Yesterday we have learned that how to write the sentences of simple present and also present continuous tense. Okay, we seen the functions, है ना, function or the structure of the sentence, how to format a sentence in simple present tense and how to format a sentence in continuous present tense. Okay, that we have learned yesterday. Now we are learning the rules. So first and second rule we have done. First rule is, if a noun is ending with consonant and the consonant word is following the short vowel alphabet, that time we double the consonant. That means रब होगा तो हम रबिंग करेंगे, that means we double the. Okay, second rule is there, if a final consonant is double if it comes after a straight syllable. That means if in a noun there are two consonant or two straight syllable, that means you have a word that refer. So you can see here refer. The final consonant is double if it comes after a straight syllable. So here R is comes in the end, okay, and before R you can see E. Okay, and E is a straight syllable, that's why we have to double the last consonant alphabet that is given. तो यहाँ पे R दिया है तो हम R को डबल करेंगे, referring. Okay, last one you can see here scare. Scare. तो last is consonant R and before R you can see A. A is the straight word, so we have to double the last one, scaring. Okay, so you have to write down this point in your notebook. From the textbook you can see. ओके, देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखती हूँ. Refer and scare. So you can see here E is a straight syllable and A is also straight syllable. Straight होके बोला जाता है refer, then scare. Okay, that's why this R is double here to make it gerund form. Referring. We have to add ing, है ना? We have to add ing. That's why we have to double this consonant which is given at the end of the noun. स्पेलिंग में एंड में जो भी कॉन्सोनेंट दिया है उसको हम डबल करते हैं. स्कैर, तो सेम थिंग स्कैरिंग. तो R is double over here because before R you can see here straight syllable. That's why it's come which consonant that comes with comes at the end of the noun or the spelling, we have to double that one. Okay, now next point is, a verb ends with a letter L. The letter is always double. Okay, कोई भी verb. Mute your speaker. Whose voices comes here? दिव्य सोनी. ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपको देख के लिखना है आपकी टेक्स्ट बुक में से. ओके, खाली यहाँ पे वर्ड पे आपको समझना है कि हाउ टू यूज इट टू मेक इट इन जीरंड फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाना है. आईएनजी यूज करते हो तो डबल कैसे करना है, डबल कहाँ पे नहीं करना है, दैट इज द रूल्स. ओके, सो नेक्स्ट रूल इज, इफ अ वर्ब एंडिंग विथ एल, सो एल इज ऑलवेज डबल व्हेन वी एडिंग आईएनजी. जब हम कोई वर्ब में वर्ब फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं तो अगर वो वर्ब फॉर्म एल से एंड होता है तो वी हैव टू डबल दैट अल्फाबेट एल. ओके, एल को हमें डबल करना है, जैसे कि यहाँ पे है ट्रैवल एंड लेबर. ओके, सी हियर दिस वर्ब फॉर्म इज
ending with L. This verb form is always also ending with L. So whenever you see this kind of verb forms that is ending with L, okay, जो L से end होता है, तो we have to double this alphabet L to make it present participle. जैसे कि present participle बनाना है, travel को traveling करना है, तो we have to double this L. Label, label का हो जाएगा labeling. Okay, so we have to double this L, leveling. Okay, so this way you have to make, you can make present participle form. Present participle form means ing forms. Okay, verb को जो ing लगता है उसे हम present participle form कहते हैं. क्या कहते हैं? What we called it? Present participle form. Yes, present participle form. देखो याद रखना, हाँ. पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल मतलब प्ले, प्लेड, प्लेड, मतलब जो लास्ट फॉर्म है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वो अलग चीज है. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट मींस आईएनजी वाला फॉर्म. ओके, वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. नेक्स्ट रूल इज देयर, a letter E is usually dropped from the word ending in E. Okay, if any verb is ending with E, that time we have to drop this E and use ing or add ing. क्या करना है? अगर कोई verb form जो E से end हो रहा है तो हमें E निकाल के ing ऐड करना है. जैसे कि bite दिया है आपको और write दिया है. ओके, देखो यहाँ पर okay, so you can see this word is ending with E, this verb form is ending with E, bite, and this verb form is also ending with E. So what we have to do in this kind of case, we have to drop E, that means हमें E को निकाल देना है और क्या ऐड करना है? ing. We have to add ing to make it present participle. So in every spelling that is ending with E, we have to drop E, मतलब E को निकाल दो. Okay, we have to cut E and then add ing. Understood? चलो, ride है तो ride का ing form क्या होगा? Riding. Okay, we have to E that comes at last. जो noun form में जो verb form में E लास्ट में आता है तो हमें E निकाल के ing ऐड करना है. Okay, clear? Okay. Next topic, next point is in some words the final E becomes a Y. कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि E जो है वो Y बन जाता है. Some words the final E becomes a Y. यहाँ पे देखो final E था तो हमें E को ड्रॉप किया और ing लगाया. ओके, अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए तो पूछना. ओके, you can ask the questions also. Now next point is if some word is ending with Y, in some cases E becomes Y. So which kind of spellings are there that becomes E in place? जो E होता है वो Y कैसे बन जाता है? तो spellings are lie and die. ओके, ये स्पेलिंग भी E से एंड हो रहा है, देखो इसके जैसे ही है. And this spelling is also ending with E. But ये अगर आप ऐसे बनाने जाओ तो ऐसा नहीं होगा कि E को कट कर दो और ing लगाओ. तो ये तो क्या बना? पढ़ो तो इसे क्या बना? लीन हो गया ना. हमें तो लाई मतलब झूठ बोलना है ना. लाई मतलब झूठ बोलना, या लाई मतलब नीचे सोया हुआ भी होता है. लाई नीचे पड़ा हुआ है. ओके, तो लाई को हमें करना है तो ये तो लाई तो कैसे बन गया? ये लीन हो गया. तो ऐसा वर्ड नहीं होता है. दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज इट इन द, वी हैव टू चेंज इट इनटू Y. सो इट बिकेम लाइन. देखो, नाउ इट इज कंप्लीट. जो E है वो किस में कन्वर्ट हो गया? Y में कन्वर्ट हो गया. तो यू हैव टू मेक, यू हैव टू यूज अ ब्लैक पेन एंड रेड पेन एंड मार्क इट. जो E है वो Y में चेंज हो रहा है. देन डाई इज आल्सो बिकेम डाई. व्हाट वी हैव टू यूज E को चेंज करना है, कन्वर्ट इनटू Y एंड देन ऐड ing. ओके,
Understood? Yes, ma'am. Okay, so these are the rules of making present participle. So these rules you have to read regularly. जब भी आप free हो, whenever you get free, you have to read this type of rules. Okay, so you can remember this one. Okay, आप उसको याद अच्छे से कर लो. Now when we use word like normally, usually, always, never, we use simple present tense. This called keywords. है ना, इसे कहते हैं keywords. अगर आपको सेंटेंस में यूजुअली दिखे, ऑलवेज दिखे, तो ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है. एंड नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, प्रेजेंटली, लुक, ऐसे वर्ड्स आए तो आपको समझ लेना है कि दिस इज द कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. ओके, तो चलो हम कीवर्ड्स लिख लेते हैं. दिस थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ओके, तो आपको टेक्स्ट बुक में से लिख के मुझे आज सेंड करना है ऑन माई नंबर. Okay, it is your homework. Now let's write keywords of simple present and continuous present. Write with me. ओके, तो इट कॉल कीवर्ड्स. कीवर्ड्स मीन्स आपको अगर कोई भी सेंटेंस दे तो अगर आपको कीवर्ड्स पता होंगे तो आप तुरंत ही यू कैन गिव आंसर दैट मैम दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. व्हाई? बिकॉज ऑलवेज इज यूज इन द सेंटेंस. ओके, इफ इन द सेंटेंस नेवर यू कैन सी, so you immediately answer me that ma'am is it simple present because never is used there. So these are the keywords that are always that are used in the sentence, and because of these keywords you can identify the tense also. If in the sentence listen is given, listen, then dash is there, so you can make this sentence in continuous present only because listen is there in the sentence. sentence में listen use हुआ है. सुनो, तो सुनो हम कब बोलते हैं? जब कंटिन्यू होगी कोई एक्शन तो ही बोलेगी ना सुनो. अब मैं कल के लिए आपको थोड़ी अभी से बोलूँगी कि सुनो, नहीं बोल सकती. अगर मैं बोलूँ कि लुक,
लुक मतलब मुझे कुछ अभी दिखाना है, करंटली, है ना, अभी एट दिस टाइम मैं मुझे आपको कुछ दिखाना है, मैं बोलूँगी लुक, तो आप सब देखोगे, दैट मीन्स द एक्शन इज रनिंग, अंडरस्टूड? दैट टाइम वी यूज ओनली लुक. So this way you can identify the tenses by these keywords. Okay, दिव्या? हाँ बोलो. वो लुक के बाद आपने क्या लिखा है? Presently. लुक के बाद क्या लिखा है? Nowadays. Nowadays. हो गया. हो गया. Okay, everyone have done? Yes, ma'am. Okay, so let's start exercise number 1 of this chapter. Exercise number 1 is circle the verbs in the simple present tense and underline the verbs in the present continuous tense. So we have to circle the simple present tense forms and underline the continuous present tense forms. Okay, so it is easy exercise. So let's start it. Let's see, one example is given there. My younger brother is studying. So is studying is a continuous present tense. So there is underline, you can see. Now second one. Rita's sister is learning French because she wants to visit Paris next year. Now you have to find out continuous present and simple Learning. present. Is learning. Yes, very good. Learning. Only learning नहीं आएगा. Is learning, it's a continuous present tense, तो उसके नीचे आपको underline करनी है and simple present tense है sentence में. Next year का है. नेक्स्ट ईयर सिंपल प्रेजेंट है. मैंने आपको कीवर्ड्स में नेक्स्ट ईयर लिखाया था. हमने फंक्शन क्या बनाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कल वाला देखो आपकी नोटबुक खोल के. सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉर्मेट फंक्शन सेंटेंस का, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फॉर्म आता है. वर्ब फॉर्म या तो बेस फॉर्म होता है, मतलब मेन फॉर्म में होता है, या फिर उसको एस लगता है विथ होम, ही शी और इट के साथ. उसको अगर एस लगे तो आपको समझ जाना है कि ये सिंपल प्रेजेंट है. चलो अब बताओ आंसर. पेरिस. व्हाट पेरिस माही? पेरिस इज ए नाउन, इट्स द सिटीज नेम. व्हाट पेरिस इज सिंपल प्रेजेंट? अरे सिंपल प्रेजेंट बनता है सब्जेक्ट प्लस V1 और SES देन ऑब्जेक्ट. सी प्लेस खो-खो. तो मैंने बताया था कि जो ये S है वो आपको शो कर रहा है सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट में लड़की को लड़की ही बोलते हैं, लड़का नहीं हो जाता है भविष्य काल में जाके. तो सी रहेगा चाहे कोई भी टेंस हो. अब खो-खो है, अगर सिंपल प्रेजेंट में खो-खो बोलेंगे तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट में उसको कबड्डी थोड़ी ना बोलेंगे, वो खो-खो तो खो-खो ही रहेगा. चेंज क्या होता है, वर्ब फॉर्म्स चेंज होते हैं. मैंने सी यूज किया है तो मुझे प्लेस लिखना पड़ा. अगर मैं आई यूज करूं, अगर आई विल यूज आई, so I have to use not plays, I have to use play only. It is the V1 form. I play kho-kho. So you can identify the tense by the verb form.
not by the nouns and all. वर्ब फॉर्म से आपको यू कैन आइडेंटिफाई, आपको पता चलता है कि कौन सा टेंस है. यहाँ पे लिखा है इज लर्निंग, इट इज द कंटिन्यूस प्रेजेंट, बट सी के बाद लिखा है wants एंड wants सो द सिंपल प्रेजेंट टेंस. चलो अब बताओ किसे नहीं समझ में आया. इसीलिए मैं आपको पूछती हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क. चलो बोलो. किससे पता चलता है टेंस? बोल बताओ. चलो सेंटेंस होता है तो सेंटेंस में कौन सा पार्ट होता है जिससे आपको टेंस पता चलेगा? बोलो. बोलो. हु विल गिव आंसर? फ्रेनी. मैम हाँ. विजिट पेरिस नेक्स्ट ईयर विजिट आएगा. व्हाट? विजिट आएगा. विजिट इसका मतलब आपको किसी को भी अभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में पता नहीं चला है. आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, उसमें मैंने आपको समझाया कि सी के बाद प्लेज लिखा है, दैट मीन्स V1 के साथ SES का यूज हुआ है. तो जो जब भी SES यूज हो तो आपको पता चलना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट है. या फिर IVU दे के साथ SES नहीं लगता है, उसके साथ V1 फॉर्म आता है, मतलब प्ले का प्ले ही रहता है, बेस फॉर्म. तो आपको प्ले से पता चलेगा कि दिस इज द सिंपल प्रेजेंट. तो विजिट कैसे होगा? मैम वांट्स. हाँ, वो तो अभी माही ने 3 बार आंसर दिया तब जाके सही आंसर मिला आपको. अगर कोई वर्ब फॉर्म मेन फॉर्म है तो वो सिंपल प्रेजेंट है, या फिर उसको SES लगता है तो वो सिंपल प्रेजेंट है. समझो पहले, यहाँ पे लिखा है देखो. अगर कोई फॉर्म को SES लगता है तो वो सिंपल प्रेजेंट है, या फिर कोई फॉर्म को कुछ भी नहीं लगता है, V1 रहता है, बेस फॉर्म रहता है. देखो यहाँ पे लिखा है प्ले इज अ V1 फॉर्म. समझो, बातें नहीं करनी है, आजू बाजू नहीं देखना है, यू हैव टू सी ऑन द बोर्ड ओनली. सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे पता चलता है? वर्ब फॉर्म से पता चलता है. वर्ब फॉर्म मतलब खेलना, दौड़ना, खाना पीना, नाचना कूदना वगैरह. ईट, रन, वॉच, सी, प्ले. अगर इसको SES लगे तो वो सिंपल प्रेजेंट है, या फिर कुछ ना लगे तो भी वो सिंपल प्रेजेंट है. किसके साथ SES लगता है? चलो बताओ. हु विल गिव आंसर? मैम V1 के साथ SES. वो तो पता है मुझे भी, बट कौन से सब्जेक्ट के साथ SES लगता है? सिंपल प्रेजेंट. सब्जेक्ट्स. Which subjects used SES with them? सब्जेक्ट आपको नहीं पता है अभी भी. देखो, इसलिए मैं आपको पूछती हूँ कि नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, लेकिन कोई किसी को कोई क्वेश्चन पूछना ही नहीं है. सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? लिखो. I, we, you, they, he, she और it. This called subjects. ये सारे सब्जेक्ट्स है हर. अब ये समझना है कि कौन से सब. मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि which subject use SVES with them. तो he, she और it के साथ S और ES यूज होता है वर्ब फॉर्म. और I, we, you और they यहाँ तक. I, we, you और they ये इसके साथ ओनली V1 ही यूज होता है. जैसे कि मैं एग्जांपल लिखती हूँ go, तो यहाँ पे हो जाएगा goes. अगर मुझे यहाँ पे लिखना है play, तो मुझे he, she और it के साथ क्या करना पड़ेगा? Not play, but I have to use as plays. So these are called verb forms. और इससे आपको टेंस पता चलता है कि कौन सा टेंस आपको दिया है. अब समझ में आया? Which are the subjects? I, we, you, they, he, she and it. These are the subjects.
किसके साथ V1 यूज होता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता है, I, V, you और they के साथ बेस फॉर्म यूज होता है, दैट मीन्स V1 मतलब मेन फॉर्म। और he, she और it, these are the थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए इन लोगों के साथ जो वर्ब फॉर्म होगा उसको आपको एस या फिर es लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो गो का गोज हो जाएगा और प्ले का प्लेज हो जाएगा। सो दिस थिंग यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। ये सब्जेक्ट वाला मैंने जो लिखवाया वो लिखो। चलो, और वर्ब फॉर्म से आपको पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। यहाँ पे वांट्स लिखा है, सी वांट्स, तो वांट्स जो है वो सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि वांट के साथ एस यूज हुआ है। एस क्यों यूज हुआ, क्योंकि उसके आगे शी है, लड़की है, तो लड़की के साथ एस यूज होता है सिंपल प्रेजेंट में। नाउ हैव यू गॉट माय पॉइंट? अगर नहीं समझ में आए तो पूछो, खाली यस मैम नहीं बोलना है। शी के साथ वांट्स यूज हुआ है, मतलब वांट फॉर्म को एस लगा है, दैट मीन्स इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वांट्स के नीचे आपको सर्कल करना है वांट्स के ऊपर, और इज प्लेइंग है ना, इज लर्निंग के ऊपर क्या करना है, अंडरलाइन करना है। नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड सेंड मी ऑन माय नंबर। आई वांट टू सी हु अंडरस्टूड दिस पॉइंट और नॉट। मुझे देखना है कि अब किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया। तो योर होमवर्क इज यू हैव टू सेंड एक्सरसाइज नंबर 1 ऑन माय नंबर, ओके? दिव्य कहाँ चला गया? मैम जिगल लीव कर दे मीटिंग। वेट, नाउ डू एक्सरसाइज नंबर 1 एंड सेंड मी। ओके, चलो, विल मीट टुमारो विद दिस एक्सरसाइजेस। मैम हाँ बताओ, बोलो। वो एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में लिखनी है? नहीं, टेक्स्ट बुक में लिखनी है और नोटबुक में भी लिखनी है। वी हैव मेड इंग्लिश ग्रामर नोटबुक ऑल्सो, दैट मीन्स यू हैव टू राइट डाउन ऑल एक्सरसाइजेस इन योर नोटबुक सो यू कैन लर्न इट एंड यू हैव प्रैक्टिस इट, ओके? अगर आप नोटबुक में लिखोगे तो ग्रामर की प्रैक्टिस होगी, इसलिए मैंने सारी एक्सरसाइजेस आपको नोटबुक में भी लिखने के लिए बोला है, ओके? दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस, दैट्स वाई। चलो, बाय बाय, विल मीट टुमारो विद दिस एक्सरसाइजेस, ओके? नाउ यू हैव टू सेंड मी एक्सरसाइज नंबर 1।